الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد ذکی اللہ کیفی کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. جمعہ مبارک. شہر رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم اور ویلکم کرنا چاہیں گے اپنے سارے ویورز کو چینل 24, سٹی 42, سٹی 41 اینڈ آف کورس روہی کے ویورز کو. آج ویورز جمعۃ الوداع ہے. آج کا دن بہت ہی بابرکت ہے. جس طرح تمام مہینوں میں رمضان المبارک کو فضیلت ہے، اسی طرح تمام دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت ہے. تو یہ ایکچولی جمعے کا دن اتنا فیوریٹ دن کیوں ہے، اس سے ریلیٹڈ بھی ہم گائیڈنس لیں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے اور جانیں گے کہ جمعۃ الوداع ہے کیا، اس کی اہمیت، اور اسی سے ریلیٹڈ بہت سی بات چیت ہوگی. لیکن اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے بھائی سے جو ہمیں نعت کے سفر پہ کافی عرصے سے لے کے چلے ہیں اور اب کچھ ہی روز باقی ہیں سفر کے، لیکن میرے خیال سے ایک نیور اینڈنگ جرنی ہے. انہوں نے تو ٹپ آف دی آئس برگ کو ٹچ کیا ہے اور جیسے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ جو کہ میں بات کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ویورز اس پہ خود ریسرچ کریں، کیونکہ میں مختصر سی بات کرتا ہوں کیوریوسٹی پیدا کرنے کے لیے. اس کے ساتھ آگے ہمارے ویورز کیا کرتے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آئیے ملتے ہیں پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی سے. السلام علیکم، جمعہ مبارک. جی وعلیکم السلام اور آپ خیر مبارک. جو آپ نے جیسے فرمایا اپنے انٹرو میں کہ جمعہ کو خاص اہمیت حاصل ہے اور خصوصاً آج چونکہ جمعۃ الوداع ہے تو اسے سید الایام بھی کہا گیا، یعنی دنوں کا سردار بھی کہا گیا. 365 ایام ہیں، ان میں سے آج کا جو بالخصوص یہ دن ہے اسے سید الایام بھی کہا گیا، یعنی تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے. اور یہ دنیا اسلام میں اس یوم القدس کے طور پہ بھی مناتی ہے اور بطور خاص اس دن کو جو ہے
یوم القدس کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے، اور خمینی بت شکن نے خصوصاً اس بات کی طرف توجہ دلوائی قبلہ اول کے حوالے سے۔ خیر، چونکہ یہ ایک ایسا ایک سلسلہ ہے کہ جس پہ بہت سیر اصل گفتگو ہو سکتی ہے، اسی کی وجہ سے تقریباً دنیا میں فسادات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اگر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ہمیں بریفلی جو ہے ہماری حکومتوں کو بھی چاہیے کہ اس انداز میں چلے کہ تاکہ ہم ان جو سختیوں سے دور ہو سکیں، ایک دوسرے سے دشمن ہو سکیں۔ اور دوسرا، حضرت جابر بن حیان، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ آپ نے ان سے مخاطب کر کے کہا کہ جابر، آج جمعۃ الوداع ہے، اور اکثر حضور جو ہے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، یہ معمول تھا کہ رمضان میں رمضان کی الوداع کہتے ہوئے اتنا آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، اتنا آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے کہ آنسوؤں کی جھڑیاں جو نہ وہ۔ اچھا، اس میں ایک خاص بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں اپنی حد تک، کہ جو صحابہ کا ایمان ہے، اہل بیت کا ایمان ہے، ہم تو ان کے عشرہ عشیر بھی نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا یہ کیوں حالت ہوتی تھی؟ وہ جانتے تھے، اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ یہ جو ایام ہے رحمتوں کے، جس میں رحمتوں کی بات ہوتی ہے، جس میں بخششوں کی بات ہوتی ہے، جس میں نزول قرآن کی بات ہے، تو وہی یہ جان سکتا ہے کہ جو اس کی اہمیت کو جانتا ہے، بالکل، کہ یہ رحمتوں کا، بخششوں کا اور جہنم کی آگ سے دوری کا جو عشرہ ہے، جب ہم سے جدا ہونے جا رہا ہے، تو یقیناً اہل ایمان کی آنکھوں میں آنسو ہی آتے ہیں۔ اور آئندہ سال اگر زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ یہ پھر دن منائیں گے۔ تو آج نعت کے حوالے سے، نعت کا سفر آج ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جی کس سے ملاقات کروا رہے ہیں؟ جی، آج ہم پاکستان میں ہیں۔ شکر ہے آپ پاکستان میں ہی آج رہنے کا آپ نے فیصلہ کیا، پوری دنیا میں گھما دیا آپ نے۔ جی ہاں، اور پاکستان میں ایک ایسی ہستی کی بات کر رہا ہوں جن کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور ایک صوفی شاعر بھی انہیں کہا جا سکتا ہے، معروف قانون دان بھی تھے اور مصور پاکستان بھی تھے۔ جہاں مفکر تھے وہاں مصور پاکستان تھے، جناب ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، واٹ اے مین، واٹ اے لیجنڈ۔ جی ہاں، اس ہستی کے بارے میں اب میں بتانا شروع کی، یہ صرف تجدید کر رہا ہوں، باقی تو ہمارا بچہ چونکہ کورس کی کتابوں میں پڑھتا ہے، تو یہ 9 نومبر جو ہے وہ 1877 میں پیدا ہوتے ہیں شیخ محمد نور محمد کے گھر میں، اور جو ہے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں ذریعہ پاکستان کا تصور انہوں نے دیا، بے شک، اور حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کو بھی لانے والے یہ ہستی تھی۔ اور میں اس لیے ان کو ولی کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ پاکستان کو جو ہے بغیر جنگ کے جو ہے اس نظریے کو جو قائم کر سکتا ہے، اور وہی بات ہوئی۔ اور اگر ان کو دیکھا جائے، قائد اعظم محمد علی جناح کی اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی پرسنالٹیز بالکل فرق تھی، ان کے لائف سٹائل بالکل فرق تھے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں، مطلب آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے ویژنری تھے جی ہاں، ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود حضرت اقبال یہ جان چکے تھے اگر کوئی کام اس حوالے سے کر سکتا ہے تو حضرت قائد اعظم کی ہستی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے امت مسلمہ کو فلسفہ خودی سے روشناس کرایا، پھر قومی غیرت و حمیت کا درس جو ہے نا ان کی آپ کو نظموں میں ملتا ہے، انہوں نے اس حوالے سے جو ہے ایک خوبصورت جو ہے وہ قیام کیا۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، چونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو ہمارے نعت کے سفر کے عظیم مسافر ہیں، اور ان کی لکھی نعتوں کا تذکرہ جو کہ مشرق سے مغرب تک ہے، یعنی کوئی دو رائے نہیں ہے، جس میں عشق و مستی اور جذب و کیف میں ڈوب کر آپ نے اردو اور فارسی میں حمدیہ اور نعتیہ کلام لکھے ہیں۔ اس کی مختصر میں اگر پیش کرنا چاہوں کہ یہ
اللہ کا ولی جو ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہے شاہی مسجد لاہور میں اس کے ساتھ ہی آپ کی مرکز ہے، اور جو فرما رہے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، واہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اور میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی نعت کی دیکھیں نا کلیات اقبال میں یہ بالکل ٹائٹل کے اوپر جو نہ لکھی ہے، میں جس کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہاں لوح بھی تو قلم بھی تو، سبحان اللہ، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہبا، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا، لوح بھی تو قلم بھی تو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، لوح بھی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قلم بھی تو، آئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد بھاگ گئے، تیری نگاہ، تیری نگاہ، تیری نگاہ، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود کتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہے ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ میں تو ابھی تک
کھوئی ہوئی ہوں جو اتنا خوبصورت کلام ڈاکٹر سر علامہ اقبال کا اتنا خوبصورت کلام میرے بہت ہی پیارے بھائی پیر مقدس کاظمی نے پیش کیا، پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی نے۔ مقدس بھائی، اب ویسے آپ نے آج کیا جس پرسنالٹی کو سلیکٹ کر لیا ہے ان کے بارے میں تو ہم ساری زندگی بات کرتے رہے تو کم ہے۔ جی بالکل، آج کی گفتگو آپ سمیٹیں گے کیسے؟ میں تو یہ دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوں آج میں تو یہ رہوں کہ میں سمیٹوں گا کیسے، یہ میں خود بھی سوچ رہا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں، اور کلام بھی سننے ہیں ہم نے آپ سے کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ مختلف پہلو ہیں، اور آپ دیکھیے کہ میں حیران ہوا کہ میرے پچھلے دنوں جب میں ایران گیا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت اقبال کے بارے میں کہتا ہوں یہ جملہ کافی ہوگا آج کے حوالے سے ہمارے پاکستانیوں کی عزت اور وقار میں دیکھیں کس قدر جو ہے اس ہستی نے جو ہے وہ چار چاند لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ایرانی کہتے ہیں کہ وہ تھے ایرانین لیکن جو ہے ان کی ہستی جو ہے نا وہ پیدا جو ہے وہ ہوئی ہے وہاں پہ پاکستان میں۔ ان کا مزاج، ان کا رویہ، ان کی جو ہے وہ یعنی اردو سے زیادہ جو ہے آپ کے فارسی میں کلام۔ بٹ آپ دیکھیں کہ ہر کلچر ان کو اون کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کلچر انہیں اون کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر زبان میں آلموسٹ آپ کی کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں۔ واٹ اے مین، واٹ اے لیجنڈ۔ میں یہی تو مطلب، اور میں نے وہاں پہ ایک کلام شروع کیا تو میرے ساتھ بہت سارے یعنی دوست جو ہے وہ شروع ہو گئے، یعنی جو پرشین تھے وہاں کے جو مقامی تھے، وہ تھا چن چراغ لال سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان من جان جہاں۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے میرا، میں نہیں چاہ رہا کہ جو ہے نا وہ اس بحث میں چلا جاؤں کہ اور کس قدر ان کی محبت تھی، اور جب میں نے یہ کلام شروع کیا جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں چونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، تو ہم اسی کلام پہ پروگرام بھی کلوز کریں گے؟ کلام ہے کہتے ہیں مختصر کر دیں گے یا کہتے ہیں تو میں کلام تو ان کے بہت ہیں، جس میں آپ دیکھیے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ واہ، تو یہ ایسے ایسے کلام اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کو شروع ہر لحظہ مومن آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت ہماری ایک عظیم جو ہے وہ ہمارے ملک کی بہت سوچ سمجھ کے آپ کو سلیکشن کرنی پڑے گی، یاد رکھیے گا۔ ہاں تو یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ویورز ناراض ہو جائیں گے آپ سے، میرے خیال سے ہمیں ایک مختصر کچھ اشعار ایک کلام کے اور پھر کسی اور کلام کو بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے میرے خیال سے۔ چلیں اس کو اس طرح کر یہ لیتے ہیں، میری ناقص سی رائے ہے۔ خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت، یہ مال و دولت، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ بوتان بے مگما، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ
इल्लल्लाह। अगरचे बुत गए जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां हुजूर के जहां 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 हुजूर के नक्शे कदम वहीं पे अली, और जहां हुसैन वहां ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। हर लहजा है, हर लहजा मोमिन की नई यान नई शान, वाह, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूद, ये चार अनासर हो तो बनता है मुसलमान। सुभान अल्लाह। ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। और मैं आखिरी शेर पेश करना चाहूंगा। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरआन। वस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज जिस जर्नी पे आप हमें लेके निकले हैं, आई होप कि जो पेरेंट्स और बाकी लोग आज हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को, देखिए हम अंग्रेज़ी पोइट्री और अंग्रेज़ी पोइट्स और वेस्टर्न कल्चर से बहुत इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हमें अपने उन फिलोसफर्स, उन राइटर्स, उन अजीम हस्तियों की तरफ रुझान करना चाहिए जिनसे वेस्ट इंस्पायर्ड है। वाह। हमारे अपने घर में इतने बड़े बड़े खजाने हैं अगर हम सिर्फ आंखें खोल के देखें। थैंक यू सो मच मुकद्दस भाई, थैंक्स वेरी मच। आज आपने बहुत ही दरिया को कूजे में बंद किया, पता नहीं कैसे किया लेकिन कर दिया है, कर दिया है। लेकिन यही तो मेरे भाई का कमाल है। व्यूअर्स, यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने स्कॉलर्स के साथ बात करेंगे जुम्मतुल विदा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब प्रोग्राम में आपके भाई आते हैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरे जो रूहानी और स्पिरिचुअल भाई हैं आज वो हमारे साथ हैं, हमेशा बहुत ही प्यारे अंदाज में गाइड करते हैं और जेंटली और सॉफ्टली अपने मैसेज को अक्रॉस कर जाते हैं डायरेक्ट दिल के अंदर। मैं बात कर रही हूँ अल्लामा हसन रज़ा ताकिर की। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक, आपको मुबारक। अल्लामा महमूद मसूद कादरी ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे टीचर, हमारे मेंटोर, हमारे गाइड। पिछले प्रोग्राम में भी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने इतनी, वो जो कहते हैं ना कि दीन की बातें की लेकिन दुनिया को बड़ी खूबसूरती से उसके साथ कनेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एंड जुम्मा मुबारक टू यू। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। अब हमारे रनाउंड स्कॉलर्स के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे मुल्क के एक राइजिंग नात ख्वां ने, हमें साकिब रज़ा कादरी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जुम्मतुल विदा। और मैं भी बाय द वे जेन्युइनली अल्लामा साहब आपसे बात शुरू करूंगी, ये जानना चाहती हूँ कि जुम्मतुल विदा की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है, और जुम्मे के दिन को क्यों दिनों का बादशाह कहा गया है। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन। देखिए, जुम्मतुल विदा की अगर फजीलत के हवाले से हम देखें तो एक तो माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा होता है। चूँकि हमसे माह रमज़ानुल मुबारक जुदा हो रहा होता है, इस वजह से इसे जुम्मतुल विदा कहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि वहाँ रिवायात में हमें अलग से जुम्मतुल विदा के हवाले से रिवायात नहीं मिलेंगी। हाँ, मुतलक़न रोज़े जुम्मा के बारे में मिलेंगी और माह रमज़ानुल मुबारक की जो आखिरी घड़ियाँ, आखिरी साअतें होती हैं, आखिरी अय्याम होते हैं, उस हवाले से हमें रिवायात मिलेंगी। अगर पहले हम जुमे के दिन की फजीलत के हवाले से बात करें तो उसे सैयदुल अय्याम कहा जाता है कि ये तमाम दिनों का सैयदो सरदार है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात बयान की गई हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात की इब्तिदा की तो वो जुमे का दिन था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पे तशरीफ़ लाए तो वो भी रोज़े जुमा था। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जब आलम अरवाह में, या जिसे आलम ज़र भी कहते हैं, तमाम मखलूक़ात से जो अहदो पैमान लिया था और उस दिन तमाम मखलूक़ात को जमा किया था, वो भी रोज़े जुमा था। और अगर हम रोज़े जुमा के हवाले से देखें, इस दिन मुख्तलिफ हमें जो फजीलतें मिलती हैं उसमें से एक ये है कि एक घड़ी, एक साथ ऐसी होती है कि जिसमें जो भी इंसान दुआ मांगे वो कबूल होती है, रद्द नहीं होती। अच्छा, अब ये बट हमने ये भी तो सुना है कि कबूलियत का वक्त कभी भी हो सकता है, बिल्कुल, दिन में किसी भी वक्त, लेकिन जुम्मे के रोज 100% एक कोई ऐसा लम्हा गुजरता है। हाँ जी, और वो लम्हा यहाँ तक कि रिवायात में बयान किया गया है। रिवायत में मिलता है कि सदीक़ा ताहिरा बीबी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा कि जब जुमे के दिन सूरज गुरूब होने के करीब होता तो अपनी कनीज़ जनाब फ़िज़ा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाती कि जाके देखो सूरज किस मकाम तक पहुँचा है, कि जब बिल्कुल सूरज डूब रहा हो तो आपने मुझे बताना है। और फिर वो फरमाती इसलिए कि मैंने अपने बाबा सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि जुमे के दिन जब सूरज गुरूब रहा हो तो उसकी आखिरी साअतों में एक घड़ी ऐसी है कि उसमें जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। असर और मगरिब के दरमियान जी, ऐसा है कि जो दर हकीकत जब सूरज गुरूब हो, जब हम कहते हैं ना गुरूब के करीब हो, समझिए उस वक्त जो 10-15 मिनट्स होते हैं ये वो लम्हात होते हैं। तो यकीनन एक तो माह रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है और दूसरा वो घड़ी हमें नसीब हो कि जिसमें दुआ कबूलियत होती है। तो मैं समझता हूँ और दुआएं तो हम मांगेंगे, हमें एक दुआ ये भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रहमत से नाउमीद न करे और हमें उन लोगों में से करार दे कि जिन्होंने माह रमज़ानुल मुबारक की रहमतों बरकतों को समेटा है, उन लोगों में से करार न दे कि जो इस माह मुबारक में भी खुदा की रहमतों और बरकतों से महरूम रहे हों। तो ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, थैंक यू सो मच भैया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इतने मुबारक दिन में हमें दावत दी और ये हमारे लिए भी सादत की बाइस है कि हमने इसमें कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकें। बुनियादी तौर पर जुमातुल विदा का जो तस्वुर है वो तो जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया कि चूँकि ये आखिरी जुमा है रमज़ानुल मुबारक का तो इसको जुमातुल विदा कह देते हैं, लेकिन इसकी एक निस्बत है इसके साथ, रमज़ानुल मुबारक के साथ। वो निस्बत ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का पहला दिन और पहली सहरी होती है उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहिसाबो किताब लोगों को बख्श देता है। और फिर फरमाया जब उसी दिन का इफ्तार होता है तो उस वक्त भी अल्लाह पाक बख्शिश के परवाने जारी करता है। सही। और हर रोज इसी तरह बख्शिश के परवाने जारी होते रहते हैं। बख्शिश तकसीम होती रहती है, मग़फ़िरत तकसीम होती रहती है, लोगों के अहवाल बदलते रहते हैं, लोगों के मुकद्दर बदलते रहते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन जब पहला जुमा आता है तो अल्लाह पाक जितने लोगों को हर रोज सहरी और इफ्तारी के वक्त बख्श रहा होता है, जब पहला जुमा आता है अल्लाह पाक उस जुमा वाले दिन उतने ही लोगों को फिर बख्श देता है। और फिर इसी तरह बख्शिश का अमल जारी रहता है। जब दूसरा जुमा आता है तो दूसरे जुमे जितने लोगों को पहले बख्शा होता है उतने ही लोगों को दूसरे जुमे फिर बख्शता है। फिर आपको पता है कि एक रहमत का अशरा है, एक मग़फ़िरत का अशरा है, फिर जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है, तो तब भी बख्शिश के सामान होते रहते हैं।
वो बहाने ढूंढता है कि किस तरह बख्शूं। किसी को कहता है खजूर की काश पर बख्श दूंगा, किसी को कहता है कि पानी के घूंट पर बख्श दूंगा, किसी को कहता है कि इफ्तारी करवाने पर बख्श दूंगा। तो बख्शिश का सामान और बख्शिश का अमल जारी रहता है। फिर जब तीसरा जुमा आता है तो फिर बख्शिश के परवाने जारी होते हैं, और जब आखिरी जुमा आता है, ये बात बड़ी काबिल गौर है, फिर दरमियान में ताक रातें भी आती हैं, उन ताक रातों में भी बख्शता है। लेकिन जो बड़ी अजीब बात बताना चाहता हूं इस जुमा के हवाले से, जुमातुल विदा के हवाले से, जब यह दिन आता है, अल्लाह पाक ने जितने लोगों को पिछले पूरे महीने में, सहरी में भी, इफ्तारी में भी, इबादत के दौरान भी, तिलावत कलाम मजीद के दौरान भी, सलातुत तरावी के दौरान भी, तहज्जुद के वक्त भी, जितने लोगों को बख्शा होता है, अल्लाह पाक उतनी ही तादाद में जुमातुल विदा के दिन लोगों को और बख्श देता है। जब आखिरी दिन आता है रमजान मुबारक और आखिरी जुमा आता है, तो अल्लाह पाक बख्शिश के सामान को और ज्यादा बढ़ा देता है, उतने ही लोगों को अल्लाह पाक फिर बख्शता है। और यहां पर एक ज़िम्नन बात अर्ज कर दूं, जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है, जिसे आप चांद रात कहते हैं या आप लैलतुल जायज़ा कहते हैं अरबी जुबान में, लैलतुल जायज़ा, तो अल्लाह पाक जितने लोगों को पूरे महीने में बख्शा होता है, उस रात फिर बख्शिश तकसीम फरमाता है। लेकिन शर्त यह है कि उस रात को आप याद रखें कि आपने 30 या 29 रोजे रखे हैं, क्योंकि आपने अब ऐसा सब्जेक्ट छेड़ दिया है जो मेरे लिए एक बड़ा पॉइंट ऑफ सेंसिटिविटी का है कि पूरा महीना आपने इबादतें की, आपने रोजे रखे, अपने अंदर के वो जो कहते हैं ना शैतान को कंट्रोल में रखा। जैसे ही चांद रात आती है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ देते हैं, और लैलतुल जायज़ा तो किसी को याद ही नहीं होता। और मुझे हैरानगी इस बात पे होती है व्यूअर्स कि इस स्पेसिफिक टॉपिक पे हमारी रमजान ट्रांसमिशन पे भी बात नहीं होती। जी जी, 29वें रोजे की शब मतलब जो स्टार ट्रांसमिशन भी होते हैं, उसमें चांद रात पे आपने चूड़ियां खरीदी, आपने मेहंदी कहाँ से लगानी है, अच्छा किस रंग का जोड़ा खरीदा है, ये हमारी प्रायोरिटी हो जाती है। अलामा साहब, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज शिफ्ट जो एकदम से ऐसे हो जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल। मुझे तो बहुत ही शॉकिंग लगता है ये। ऐसे ही, हालांकि लैलतुल जायज़ा का मतलब यह है कि उस रात हमें वो रिवॉर्ड मिलना है, गिफ्ट मिलना है। अगर कोई इंसान खुदा की बारगाह से गायब हो जाए, वो हाजिर ही ना हो, तो वो कैसे रिवॉर्ड वसूल करेगा, वो गिफ्ट वसूल करेगा। असल में तो ये है कि वो हमें समझिए इम्तिहान की भी हमारे लिए रात है कि जो सारा मैंने महीना इबादत की, रियाजत की, क्या वाक़यन अब मैं वो सब समेट सकता हूँ या नहीं समेट सकता। इसलिए उस रात को हम ये समझते हैं कि शैतान आज़ाद हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब वो इबादत और रियाजत हम भी आज़ाद हो गए, अब वो पहली रूटीन है। नहीं, वो जो हमने एक पूरा महीना मश्क की है, रियाजत की है, अब प्रैक्टिकली उसे प्रूव करने का वक्त है। लॉजिकली मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शन क्या है, बल्कि इस पे भी हम मेरे ख्याल से डेफिनेटली हम 29वें रोजे को, क्योंकि हमें तो बाद में ही पता चलेगा कि 30 हैं कि 29 हैं, हमें इस टॉपिक पे बात भी करनी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। लेकिन एक सवाल जो जहन में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मतुल विदा का कैसे एहतमाम करते थे, आपकी सीरत तैयबा से हमें क्या गाइडेंस मिलती है, थोड़ा सा ये बताइए। अब अगर देखें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दिन के हवाले से एहतमाम, सबसे पहले तो देखिए जैसे ये सैयदुल अय्याम भी है और इसी तरह से रोज़े ईद भी करार दिया गया है। जैसे हम ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा उन दिनों में अय्याम एहतमाम करते हैं, इसी तरह इस दिन भी एहतमाम करना चाहिए। क्या मतलब? अच्छा लिबास पहना जाए, इंसान खुद को मुअत्तर करे, और फिर गुस्ल की बहुत ज़्यादा फजीलत है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए उम्मत को पैगाम भेजा कि अगर आपके पास पानी ना भी हो तो आप पानी खरीद कर गुस्ल करें, कि जुमे के दिन का इस कदर गुस्ल की फजीलत है। और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान सिर्फ जुमे का गुस्ल करता है तो इस गुस्ल के एवज़ जहाँ उसे ज़ाहिरी तौर पर जिस्मानी सफाई है, वहीं पे मानवी तौर पर उसके गुनाह झड़ते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान 40 जुमे मुसलसल, यानी दरमियान में कोई भी जुमा मिस ना करे, 40 जुमा मुसलसल वो गुस्ले जुमा बजा लाता है, तो उसका जिस्म कब्र में बोसीदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। अक्सर हम देखते हैं कि औलिया आइमा के जिनके अजसाद मुताहर जो है वो कब्र में अगर सैकड़ों साल बाद भी
खोले गए तो वो बोसीदा नहीं थे, ताज़ा जिस्म थे। बिल्कुल। बाइद नहीं कि रसूल खुदा की हदीस का यही राज उसके अंदर छुपा हो कि जो 40 जुमे मुसलसल गुस्ल जुमा करता है तो उसका कब्र में जिस्म नहीं होता। और मेडिकल साइंस एज यूजुअल दंग की दंग रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर जुमे के दिन और जो फजीलत रसूल खुदा ने बयान फरमाई, आपने कहा कि मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद पढ़ो कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। और फिर इस हवाले से हदीस आपने इरशाद फरमाई कि जो बंदा जुमे के दिन 100 दफ़ा मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी 60 हाजात को इस दुरूद के सदके में मुस्तजाब कबूल करता है। उसमें से 30 हाजतें दुनिया की होती हैं और 30 हाजतें आखिरत की होती हैं, यानी वो जो भी मांगना चाहे मांगे। फिर इस हवाले से ख़ास तौर पे सूरह वाक़या उस दिन पढ़ने की फजीलत है कि अगर आप सूरह वाक़या पढ़ेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सूरत के सदके में आप पर कभी गुर्बत, अफलास, नादारी नहीं आ सकती। अल्लाह इसके एवज़ आपको रिज़्क अता करता है। लेकिन क्या सूरह वाक़या आप कभी भी पढ़ सकते हैं या स्पेसिफिकली इन दिनों में? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे क्लैरिटी लेनी ज़रूरी होती है। हमारी फैमिली में एक खातून जो है वो पढ़ा करती थी बड़ा रेगुलरली, डेली वो कहती थी कि मैं असर और मगरिब के दरमियान पढ़ती हूँ, ज़रूर सूरह वाक़या पढ़ती हूँ। तो उनको मना किया गया इस चीज़ से क्योंकि उनकी हेल्थ बहुत सफ़र करना शुरू हो गई थी। नहीं, उसमें यह है कि सूरतुल वाक़या की ख़ास तौर पे फजीलत है कि वो नमाज मगरिबैन के बाद उसकी तिलावत हर रोज़ की जाए। मगरिब के बाद? हाँ जी, नमाज मगरिबैन के बाद। और इसमें रिवायत भी है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं, उनके बेटे नहीं थे, उनकी बेटियां ही थीं। कहते उनकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में एक साहिब सरवत मुसलमान उनके पास गया। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि आपको बहुत सा माल अता कर दूं, चूंकि आपका पीछे बेटा कोई नहीं, आपकी बेटियां हैं। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं नहीं, मुझे आपके माल की ज़रूरत नहीं, मैंने अपनी बेटियों को सूरतुल वाक़या की तालीम दी है और उन्हें मैंने इसका पाबंद बनाया है कि वो हर शब को सूरतुल वाक़या की तिलावत करें, इसलिए कि मैंने रसूल खुदा से सुना है कि जो सूरतुल वाक़या की हर शब को तिलावत करता है उसकी नस्लें कभी भी मुफलिस, नादार और गुर्बत में ज़िंदगी बसर नहीं करती। सुभान अल्लाह। यहाँ पे हम कलाम सुनते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब हम वापस आएंगे तो आपसे अलामा साहब ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि हमें ऑफ कोर्स मेरे बहुत प्यारे भाई ने गाइड तो किया है, लेकिन जुम्मतुल विदा को कोई स्पेसिफिक दुआएं, कोई स्पेसिफिक आयात, सूरह वाक़या तो आपने बताया ही, और कोई ऐसी चीज़ें जो हम करें? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ताक रातों को और स्पेशली जुम्मतुल विदा को बहुत ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। कुरान पाक की तिलावत करें, क्या हम स्पेसिफिकली तस्बीह पढ़ें कोई? तो इस पर हम गाइडेंस लेंगे ब्रेक के बाद। जी मेरे भाई। उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश एक बार सरकार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। करम है, करम ही करम है, करम
ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है। उनका गदा क्या, उनका गदा क्या, ये एजाज कम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है। शबो रोज उल्फत का इजहार करना, शबो रोज उल्फत का इजहार करना। हुजूर आपसे प्यार, बस प्यार करना, हुजूर आपसे प्यार, बस प्यार करना। शबो रोज उल्फत का इजहार करना, हुजूर आपसे प्यार, बस प्यार करना, हुजूर आपसे प्यार, बस प्यार करना। यही दीन मेरा, यही दीन मेरा, यही दीन मेरा, ये मेरा धर्म है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है। उनका गदा क्या, उनका गदा क्या, ये एजाज कम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है। बना दीजिए बिगड़ी शाह आज मेरी, बना दीजिए बिगड़ी शाह आज मेरी, के है आपके हाथ में लाज मेरी, के है आपके हाथ में लाज मेरी। बना दीजिए बिगड़ी शाह आज मेरी, बना दीजिए बिगड़ी शाह आज मेरी, के है आपके हाथ में लाज मेरी, के है आपके हाथ में लाज मेरी। हुजूर आपसे, हुजूर आपसे दो जहां का भरम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है। उनका गदा क्या, उनका गदा क्या, ये एजाज कम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है, करम ही करम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह अब्दुल रहमान ख्वाजी बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पेश किया। अच्छा, हमारे पास कुछ ऑनलाइन भी सवाल आए हैं जिनकी तरफ मैं आऊँगी, लेकिन पहले जो ब्रेक से पहले आपसे जानना था कि कोई मखसूस इबादत या कोई स्पेसिफ़िक इबादत जो जुम्मे के दिन नहीं बल्कि जुम्मतुल विदा से मुंसलिक हो। जुम्मतुल विदा बुनियादी तौर पर जुम्मतुल मुबारक ही है। जुम्मतुल विदा हम इसलिए कह देते हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है। तो इस हवाले से मैं जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि जुम्मतुल मुबारक बुनियादी तौर पर
یوم الدعا ہے. اس دن جتنی بھی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی جائیں وہ کم ہیں. اسی طرح یہ یوم الصلاۃ بھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضور کی آل مبارکہ پر درود و سلام پڑھنے کا دن بھی ہے. تو اس میں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ یہ دن جو ہے اس کو تمام دنوں کا سردار بھی بنایا گیا. بالکل. اور اس کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ ایک نسبت بھی قائم کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے ساتھ. اور میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب موجود ہیں، اس دین میں حضور کی ذات کے ساتھ اگر نسبت نہیں ہے تو آپ کا کچھ بھی قبول نہیں ہے. صحیح. آپ کا رمضان بھی قبول نہیں ہے، آپ کے روزے بھی قبول نہیں ہیں، آپ کی عبادات بھی قبول نہیں ہیں. تو جمعہ کا دن سب سے بڑا دن اہل ایمان کے ہاں، اور پھر اس دن کو حضور کی امت کے لیے عید کا دن بھی بنایا گیا ہے. ان اللہ جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین. اس دن کو بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بڑی عجیب بات، کہ عیدیں تو صرف دو ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں جی وہ عید میلاد النبی، مولا کائنات کی ولادت کو آپ عید کا دن کیوں کہہ دیتے ہیں، غدیر خم کے دن کو آپ عید کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اس سے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے. تو ان اللہ کے بندوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اگر ان دو عیدوں کے علاوہ آپ سال میں 48 عیدیں مناتے ہیں، ہر جمعہ ایک عید، ہر جمعہ ایک عید، تو حضور کے میلاد کا دن عید کیسے نہیں بن سکتا؟ کہ جس کے صدقے میں ہمیں عیدیں ملی، جس کے صدقے میں ہمیں جمعے ملے، جس کے صدقے میں ہمیں رمضان المبارک ملا. تو یہ وہ دن ہے جمعۃ المبارک کا. میں خاص جو عمل بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ سب سے بڑی بات آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر درود و سلام کی کثرت کرو. اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا عام نارمل دنوں میں درود پاک جب کوئی پڑھتا ہے تو وہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. عام نارمل حالات میں جب کوئی درود پاک پڑھتا ہے تو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، جس طرح بادشاہوں کی بارگاہ میں چیزیں پیش کی جاتی ہیں تو میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. لیکن جب کوئی جمعہ کے دن مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اپنی قبر انور میں خود اس کو سماعت کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ جمعہ کے دن علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دعا قبول ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کا وقت اور خطبوں کے دوران کا وقت ہے. اشارے کیے ہیں علماء نے، ڈفرنٹ ٹائم ہے، کسی نے کہا عصر کا وقت ہے، ڈفرنٹ لوگوں نے اشارے کیے. سو the point is دیکھیں سارا وقت اگر ہم عبادت کی حالت میں رہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں ہر وقت ہمیں باوضو رہنا چاہیے کہ جب بھی جی چاہے اور ہر وقت جی چاہنا چاہیے ہم عبادات میں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ اگر تعلق جوڑ کر ہم اللہ کے حضور دعا مانگیں گے، اسی لیے تو کہا گیا کہ دعا سے پہلے بھی درود و سلام پڑھ لو، دعا کے بعد بھی درود و سلام پڑھ لو. تو وہ درود و سلام اس دعا کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کروا دیں گے. بے شک بے شک. اچھا جو آن لائن سوال آیا علامہ صاحب آپ کے لیے، یہ کینیڈا سے سوال آیا عائشہ کا. وہ پوچھ رہی ہیں کہ جمعے کی نماز کا، صرف جمعۃ الوداع نہیں، جمعے کی نماز کا اور اس کے خطبے کا کی کیا اہمیت ہے، اور کیا یہ خواتین کو بھی اپلائی کرتا ہے؟ انٹرسٹنگ سوال ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ جمعے کو اجتماعی، مطلب جمعے کی نماز جس کو کہتے ہیں وہ اٹینڈ بھی کرنی ہے، مرد حضرات جاتے ہیں، خواتین گھر پہ یا کچھ خواتین مساجد میں بھی جاتی ہیں، بٹ کبھی پوچھا نہیں بائے. تو تھوڑا سا اگر ہمیں دیکھیے اس حوالے سے اگر جمعے کے دن کی بات ہو اور نماز جمعہ کی بات نہ ہو تو میرا خیال وہ بات ادھوری رہتی ہے. اس لیے کہ خاص طور پہ اللہ نے سورہ جمعہ قرآن مجید میں نازل کیا اور اس میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ صاحبان ایمان جب جمعے کے دن تم آذان کی آواز سنو، ندا، تو اس کے بعد فوراً تیزی سے اللہ کے ذکر کی جانب بڑھو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یعنی خاص حکم ہے کہ جب وہ وقت نماز جمعہ ہے اس وقت خرید و فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہے. اور جو خواتین کے حوالے سے آپ نے کہا، اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ عبادات اجتماعی قرار دی ہیں. جیسے حج ایک اجتماعی عبادت ہے، ویسے ہی نماز جمعہ ایک اجتماعی عبادت ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حالات سے آگاہی حاصل کرے اور پھر ایک مسلمان پورے عالم اسلام کے سیاسی، معاشرتی اور معاشی حالات سے بھی آگاہی حاصل کرے. اس لیے جمعہ ہمیں ایک اجتماعی عبادت کی صورت میں اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے. لیکن کچھ لوگوں کو
नमाज जुमा में शिरकत से रुखसत अता की गई है। ओके। और जिनको रुखसत अता की गई है उनमें बीमार शख्स है, ग़ुलाम है, ख़वातीन है, एक ऐसा शख्स जो 2 फरसख से दूरी के फासले पे रहता हो। लेकिन क्या अगर औरत नमाज जुमा में शिरकत करे उसकी नमाज जुमा नहीं होगी? नमाज जुमा अदा हो जाएगी। लेकिन जैसे मर्दों के लिए ताकीद है कि वो जैसे ही अजान सुने तो फ़ौरन ज़िक्र खुदा की जानिब नमाज जुमा के लिए बढ़ जाए, औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है। औरतों के लिए इख्तियार है, अगर वहाँ जाके पढ़ना चाहें तो उन्हें अजर व सवाब मिलेगा। आपके पास चॉइस है? जी बिल्कुल, चॉइस मौजूद है। मतलब इट्स नॉट ज़रूरी कि आप आएँ। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ना कोई ये समझ ले कि यानी औरत को रोक दिया कि आप नमाज जुमा पढ़ नहीं सकती, नहीं, वो पढ़ भी सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जुमे के दिन में एक और अहम चीज़ की तरफ इशारा करूँगा। वो जुमे के दिन हमारे मरहूमीन की अरवाह हमारे दहलीज पे आती हैं और वो देखती हैं कि कोई मेरा रिश्तेदार, मेरी औलाद, कोई मेरा चाहने वाला राह खुदा में सदका दे ताकि हमारे लिए आखिरत की मनाजिल और आसान हो जाए। इसलिए हमें जुमे के दिन, वो जुमातुल विदा हो या कोई और रोज़े जुमा हो, अपने मरहूमीन की तरफ से सदक़े से भी गाफिल नहीं होना चाहिए। और मैं एक और चीज़ की तरफ इशारा कर दूं, जैसे ही माह रमज़ान आता है तो एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है कि अगर आप आखिरी जुमे में 4 रकत एक नमाज़ पढ़ें, जिसे क़ज़ाए उम्री के हवाले से कहा जाता है, तो ज़िंदगी भर की जो नमाज़ें नहीं पढ़ी उनकी कोई क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। It doesn't even sound right. It doesn't sound right. नहीं ऐसा हाँ जी, ये करते हैं लोग इस तरह के मैसेज। हाँ जी, ऐसे ही है। आपके यहाँ 4 रकत होंगी, हमारे यहाँ 12 रखते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ 12 रखते हैं। 12 रखते हैं पढ़ लें जी तो आपकी सारी वो कज़ाए हाँ, लेकिन वो मकतब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नज़दीक वो कोई ऐसा नहीं है कि अगर वो 4 रकत नमाज पढ़ ली जाए तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी भर की कज़ा नमाज, यानी कि बंदा वैसे जान के सारी ज़िंदगी नमाज ना पढ़े ताकि हम बस ये आखिर, प्लीज़ जो हमारे फ़राइज़ हैं वो हमारे फ़राइज़ हैं और अगर हम किसी वजह से नहीं उनको पूरा कर पाए उनकी क़ज़ा वैसे ही बजा लाएंगे जो नमाजें क़ज़ा हुई हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मैं अल्लामा साहब की बात में एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने फरमाया कि वालिदैन के लिए दुआ करना और वालिदैन की रूहें आती हैं, इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की एक और हदीस पाक है, वो जुमा के हवाले से ही है। मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा मिन यौमिल जुमअति गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र व कुतिबा लहू बर्राउन। जो शख्स जिसके वालिदैन दुनिया से पर्दा कर जाएं, बाप कर जाए, माँ कर जाए, तो जो शख्स जुमा वाले दिन अपने माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करता है, अल्लाह पाक उस शख्स के अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह। और उसका नाम नेकोकारों की लिस्ट में लिख दिया जाता है कि ये बंदा नेक है। क्या बात है। आप इस्लाम का तसव्वुर देखिए ना, तो जो शख्स मरने के बाद माँ बाप की कब्र पर जाता है और जुमे के दिन जाता है, तो आप तसव्वुर कीजिए जो जिंदगी में अपने माँ बाप की खिदमत करता है। यहाँ पर एक मैं बड़ी अजीब बात अर्ज करने लगा हूँ जी, वो ये है कि देखिए जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है, जब शब बरात आती है, जब ऐसे मौक़े आते हैं तो हम मोबाइल फ़ोन से मैसेजेस करते हैं कि मुझसे अगर कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दें। गलती आपने इन पर्सन की, लेकिन मोबाइल पे आपने सॉरी कर दिया। मुझे सॉरी कर दिया, और जिससे नहीं भी की उससे भी सॉरी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है, घर में जो माँ बाप बैठे हैं आपके पास, लाइव घर में बैठे हैं, उनसे कोई माफ़ी नहीं मांगता, सॉरी नहीं कहता, उनके कोई पाँव दबाने की कोशिश नहीं करता, उनकी खिदमत करने की कोशिश नहीं करता। एक गैप है, उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जाती। तो ये बात अर्ज करने की ज़रूरत है और बताने की ज़रूरत है आज की नई नस्ल को। जुमातुल मुबारक हो, 27वीं की रात हो, शब बरात हो, लैलतुल जायज़ा हो, जो भी रातें हों, जो बड़े दिन हों, तो आपने क्या करना है, आपने अपने वालिदैन को सबसे पहले मनाना है, अपने वालिदैन के करीब जाना है, अपने रिश्तेदारों के करीब जाना है, अपने दोस्त अहबाब के करीब जाना है, उनको मनाना है। तब जाकर जो है वो आपको उसका अजर मिलेगा और अल्लाह पाक की बारगाह से एक बख्शिश और बरकत का सामान। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारे पास एक और सवाल आया है, ये हमारे पास लंदन से आया, यूके से। उस सवाल का हम जवाब लेंगे जो बेसिकली ये है कि जुम्मे के रोज़ खुतबा सुनना कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत दफ़ा लोगों के पास सिर्फ इतना टाइम आता होता है कि वो सिर्फ आके जॉब से या किसी वजह से वो छोड़ के आते हैं। तो खुतबा सुनना कितना इम्पॉर्टेंट है मर्द हज़रात के लिए, ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें गुलाम मुस्तफ़ा ने ज्वाइन किया है कलाम पेश करने के लिए। इनको ही सुनते सुनते हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी तरफ हम आएंगे अभी, लेकिन हमने अपनी आज की गुफ्तगू को रैप अप करना है। आज कुछ सेटिस्फैक्शन हुई कि कुछ डिटेल में हम जुम्मतुल विदा और जुम्मा से रिलेटेड बातचीत कर पाए, बिकॉज जुम्मे के दिन के बारे में बहुत सुना है कि बहुत फजीलत है, एक लम्हा गुजरता है जब आपकी कोई भी दिल से मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है, जायज़ हो ऑफ कोर्स, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी सीखी जो हम नहीं अंडरस्टैंड करते थे। मैंने बड़ी दफ़ा सुना है कि भाई जब जाके नमाज पढ़ लें तो खैर है जुम्मे के रोज़, लेकिन खुतबा पढ़ना दोनों फिक्कों में, इस्लाम में पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, क्लोजिंग में आप क्या कहेंगे? जैसा कि जुम्मतुल विदा है, यानी ये माह रमज़ान अल मुबारक का आखिरी जुम्मा जो रहमतों बरकतों की साआतें हैं गुज़र रही हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अभी भी हमारे पास मुहासबे का वक्त है कि हम खुद अपना मुहासबा करें कि मैंने इस माह रमज़ान अल मुबारक में क्या खोया है और क्या पाया है। और अभी भी वो घड़ियाँ ख़त्म नहीं हुई, माह रमज़ान अल मुबारक की घड़ियाँ मौजूद हैं और अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले हुए हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद हैं। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि जो दरवाज़े तूने रहमत के हम पे खोले हुए हैं उन्हें बंद न कर, और जो दरवाज़े जहन्नुम के बंद हैं उन्हें हम पे न खोल। और आखिर में एक बात कहूँगा कि दुआ की कबूलियत के मुख्तलिफ औकात होते हैं, जैसे हर नमाज के बाद भी दुआ कबूल होती है। इसी तरह जनाब अनस इब्न मालिक साहबी रसूल की भी रिवायत है, असर से लेके मगरिब तक, सूरज ढलने तक इसी तरह दुआ की कबूलियत के वक्त होता है। इसी तरह जब अजान और इकामत के दरमियान है, अजान के बाद, वो भी दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। कोई ये ना नाजरीन समझे कि सिर्फ एक ही घड़ी है स्पेसिफिक नमाज जुम्मा या रोज़े जुम्मा में सिर्फ उसमें दुआ कबूल होती है, नहीं, दर हकीकत ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगिए। और आखिर में जब सूरज गुरूब हो रहा हो, वही जो जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, उसमें कोई दुआ रद्द नहीं होती, उस घड़ी को गनीमत जानिए कि अभी जुम्मे की आखिरी साआतें हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात पॉइंट आउट की। और व्यूअर्स यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे कि अलामा साहब ने कहा कि नमाज के बाद कबूलियत का वक्त होता है, नमाज पढ़ना भी शर्त है। हम करते ये हैं कि हम कहते हैं कि जी हमें डिफरेंट इबादत बता दें जिससे हमारी, फॉर एग्जांपल जैसे आपने सूरह वाक़िया का बताया कि अगर आपकी रिस्क में फरावानी आपको चाहिए तो आप सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ें। जी बिल्कुल। तो ये कुछ इस किस्म की जो और ऑफ कोर्स सूरह रहमान सुनना, सूरह बकरा सुनना, सूरह मरियम सुनना, मतलब बहुत से डिफरेंट हमें बातें कही गई हैं, लेकिन फराइज को पहले पूरा करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम दूसरी इबादत में पड़ जाते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यूअर्स सुन्नत में और फर्ज में एक फर्क है, और फराइज आपने पूरे करने ही करने हैं, या फिर जो भी चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है आपके पास। जी, मैं अपनी बात को वाइंड अप इसी तरह करता हूँ कि जुम्मतुल विदा का मतलब क्या है कि सेइंग गुड बाय टू जुम्मतुल मुबारक, सही, सेइंग गुड बाय टू रमज़ान मुबारक। यानी इससे ये मुराद ना ले लिया जाए कि अब हमने जो जुमा पढ़ना है वो अगले साल रमज़ान में ही पढ़ना है। इससे ये भी मुराद ना ले लिया जाए कि हम नमाज को भी अब पेंडिंग कर देंगे, ईद की नमाज पढ़ के अगले साल तक उसको भी अलविदा कह देंगे, हम जुमा को भी अलविदा कह देंगे, हम कुरान मजीद को भी अलविदा कह देंगे, हम नवाफिल को भी, तहज्जुद को भी अलविदा कह देंगे। ये एक महीना था प्रैक्टिस का महीना कि जिस महीने में आपने अपने आप को प्रैक्टिकली दीन के साथ टच करना था, मिलाना था। अब अगले 11 महीने आपने इस पर अमल करना है, इसको कंटिन्यू करना है। तो मैं उम्मत मुस्लिमा को ये कहता हूं कि आपने इसके ज़रिए जुड़ जाना है रमज़ान मुबारक के साथ और इबादत के साथ। थैंक यू सो मच। आप दोनों को जुम्मा बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हम सबको लंबी सेहत वाली, खुशियों भरी, अच्छी किस्मत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। जी मेरे भाई। वरफ़ाना लका ज़िक्रक वरफ़ाना लका ज़िक्रक वरफ़ाना लका ज़िक्रक वरफ़ाना लका ज़िक्रक
تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا راستہ میرا ہادی، تیرے ذرے میرے دیپک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہو نہ کلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، تیرا نقطہ میرا نامہ، کیا تو نے مجھے زیرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔ میری سوچیں ہے سوالی، میرا لہجہ ہو بلالی، شب تیرا کر خیرہ، میرے دل بھی ہو مثالی، تیرا مظفر ہو میرا فن، تیرا لہجہ میرا دامن، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک۔